So let us begin with the part 5 of the chapter thermodynamics from 12th. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का पार्ट 5 हम शुरू कर लेते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं वी आर गोइंग टू लर्न हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, और एक एडिशनल होगा स्टर्लिंग साइकिल, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस नाउ। शुरू करते हैं इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल we will understand what is meant by the heat engine. This is the schematic diagram of heat engine that you see here. ये heat engine का schematic diagram है. Okay? तो इसमें let us understand हो, ये अगर ये schematic diagram है this is heat engine. It is a device which operates on a cyclic processes. Heat engines are the devices which transform heat partly into work or mechanical energy. ठीक है, by using the cyclic processes. Automobile engines are the familiar examples of heat engines. तो ये heat engine का एक schematic diagram है। अब heat engine consists of basically 3 components. ऊपर का जो component है उसे कहते हैं HR. HR बोले तो HR का मतलब है hot reservoir. This is called as hot reservoir. As the name suggests, or this is also called as source. And this is at the higher temperature. This is at higher temperature. और ये heat engine it receives heat from this, जिसे हम Q1 बोलेंगे या QH बोल सकते हैं. We can call this as QH or we can call this as Q1. Is this okay? And this is at temperature TH, or let me call this as T1. Is that clear to all? Similarly, the heat engine is exchanging the heat with the CR. CR stands for cold reservoir. Cold reservoir. Okay, or we also call this as sink. This is called as sink, and this is heat engine is giving out heat equal to QC, or I'll call this as Q2. समझ में आ गई बात? Is that clear to all? So it is receiving the heat from the hot reservoir. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, if I tell you as an example here, कि समझो कि this is receiving 100 joule of heat here and it is giving 20 joule of heat here. So it will be doing the work here. ये यहाँ पे work करेगा. Some work is given out. Engine का काम है work करना. So what will be the amount of work that it will be doing? Heat balance equation अगर हम लिखें या energy balance equation, तो it is receiving 100 joule here, it is rejecting 20 joule. So what is the amount of work done here? Is that equal to 80 joule? Yes or no? Are you understanding that? So what will be the heat balance equation here? इसे हम लिखते हैं heat balance equation, or in other words I can call this as energy balance equation. क्या होगा जी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन? कैन यू प्लीज टेल मी? इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट, एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज QH इज इक्वल टू W प्लस QC. नाउ W है, दिस इज द यूजफुल पार्ट ऑफ इट. We can compare this with the automobile engine. Automobile engine receives the heat from what? What is the hot reservoir there? Hot reservoir क्या होता है? इंजन के अंदर जो फ्यूल होता है उसको बर्न किया जाता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दैट इज द हॉट रिजर्वायर. समझ में आ गया? एंड देन इट इज डूइंग द वर्क. वर्क होने के बाद डज इट गिव आउट सम हीट टू द सराउंडिंग्स? डज इट गिव आउट द हीट टू द सराउंडिंग्स? सो दैट इज द हीट रिजेक्टेड. नाउ सोर्स इज द heat source, actually heat source of infinite capacity, and sink is the reservoir which is capable of accepting infinite amount of heat. सिर्फ दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है. यहाँ पर T1 is always greater than T2, or in other words temperature of the hot reservoir is greater than the temperature of the cold reservoir. So this is the schematic diagram of
heat engine. We call this as heat engine. Is this clear to you all? Is this okay? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, is this okay? Any doubts about that? ठीक है, तो यहां पर इन्होंने चीजें बताई है. वर्किंग सब्सटेंस. नाउ व्हाट इज द वर्किंग सब्सटेंस हियर? वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या है? वर्किंग सब्सटेंस इज द सब्सटेंस विच इज सर्कुलेटेड इन दैट. ठीक है, तो यहां पर व्हाट आर द एलिमेंट्स? देखिए यहां पर मैंने बताया हीट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम द सोर्स कॉल्ड एज रिजर्वायर. इट डज द वर्क. ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस? इट्स एलिमेंट इज फर्स्ट इज वर्किंग सब्सटेंस. इट कैन बी आइडियल गैस फॉर आइडियल हीट इंजन. ओके, लेकिन प्रैक्टिकल हीट इंजन के लिए मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर. क्या क्या यूज किया जाता है यहाँ पे? मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर इन द गैसोलीन इंजन और डीजल इंजन में भी वो यूज किया जाता है. ठीक है, वैसे ही स्टीम इंजन जो था, स्टीम इंजन के अंदर स्टीम इज यूज्ड एज द working substance. By the way, what is the working substance? Working substance is something with the help of which the exchange of heat takes place. Is this clear to all? समझ में आ गया? तो पेट्रोल, डीजल या स्टीम, दीज आर द वर्किंग सब्सटेंसेस. अगला है कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर्स. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर्स हियर. ओके, तो अगला है सिलेंडर. द नेक्स्ट इज सिलेंडर. तो उसके अंदर वॉट एवर इज डन देयर, जनरली द वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर विथ मूविंग फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन. देखिए ये सारी चीजें उसके अंदर मूविंग फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन. लेकिन ऐसा आइडियल केस में होता है. रियलिटी में मासलेस पिस्टन होगा क्या? रियलिटी में जो आपके इंजन होता है गाड़ी का, उसके अंदर मासलेस पिस्टन नहीं होता. क्या उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद होगा? हाँ, वेरेवर देयर इज मोशन देयर हैज टू बी फ्रिक्शन. सो दिस इज आइडियल केस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, ऑलराइट. तो ये सिलेंडर इज वन मोर कंपोनेंट हियर. ठीक है. नाउ हीट इंजन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन. इंटरनल कंबशन इंजन मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो फ्यूल होता है उसको बर्न किया जाता है, वर्किंग सब्सटेंस उसके अंदर होता है. समझ में आ गई बात? Isn't it? So automobile engine is the example of automobile और gasoline और diesel engine. This is the example of internal combustion engine. और दूसरा कौन सा होता है जी? Which is the other one? The other one is external combustion engine. उसका example is steam engine. steam engine के अंदर steam बाहर जनरेट किया जाता है बॉयलर के अंदर और फिर वो steam engine के अंदर लेके जाते हैं. समझ में आ गई बात? Is this clear? So steam is generated outside the engine. यहाँ पर the combustion is taking place within the engine itself. तो ये ऐसे आपको पूछ सकते हैं MCQs में ये चीजें, इसलिए मैंने छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको अंडरलाइन करके यहाँ पे डाल दिया है कि steam engine is the example of internal combustion engine, external combustion engine, IC engine. It is external combustion. अच्छा, internal combustion engine को ही short form में IC engine कहा जाता है. IC stands for internal combustion. Is this clear? एग्जाम्पल्स है उसके पेट्रोल और डीजल इंजन, गैसोलीन इंजन. पेट्रोल को ही गैसोलीन भी कहा जाता है. आई होप यू नो दिस. ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन के अंदर. एनी हीट इंजन, आगे बढ़ते हैं. एनी हीट इंजन, ये सब मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है. ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक अभी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है, सब आपको मैं PDF कर दूंगा जैसे लास्ट टाइम किया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लेट अस टेक दिस फर्दर. क्या दिया है जी यहाँ पे? Any engine works on the following 3 basic steps. देखो डायग्राम ऐसा दिया है बुक के अंदर और मैंने ये स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पर व्हाट इज द इनपुट हीट हियर? द इनपुट हीट इज QH एंड द हीट रिजेक्टेड आउटपुट हीट इज QC. लेकिन हमारा जो मेन आउटपुट है वो है वर्क डन, W, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और वो हीट बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर दिया है. Isn't it? लेकिन ये इक्वेशन गलत दिया है. यहाँ पे जो दिया है दैट इज द रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है? QH प्लस QC. अच्छा, इन्होंने QH प्लस QC दिया है. इनकमिंग हीट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग हीट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव, इसलिए इसको मॉड्यूलस ऑफ QH माइनस मॉड्यूलस ऑफ QC ऐसा बोल दिया है. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So the working substance absorbs the heat from the hot reservoir at higher temperature. ये working substance होता है, वो heat लेता है, उसमें से some part of heat is converted into the work and the remaining part of heat is rejected to the sink. ये चीजें हैं. Part of the heat is absorbed.
तो यहाँ पर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि भाई इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द हायर टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर. देन दूसरा, heat part of the heat absorbs is converted into the work here. This is the second part, isn't it? And what is the third part? Third part, the remaining heat is transferred. The remaining heat is transferred to the surroundings or the cold reservoir, which is at the lower temperature. So, 1, 2 और 3. These are the three basic steps here. Any doubts about that? Are you all understanding that? एक ही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं यहाँ पे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ इट इज टाइम टू राइट डाउन द हीट बैलेंस इक्वेशन. हीट बैलेंस इक्वेशन जो हमने पहले ही लिखा था उसी इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पर लिखना चाहेंगे. विल ट्राई टू राइट डाउन द हीट बैलेंस इक्वेशन वंस अगेन. ओके, विल ट्राई टू राइट डाउन द हीट बैलेंस इक्वेशन वंस अगेन हियर. बताइए क्या होगा जी हीट बैलेंस इक्वेशन. प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द हीट बैलेंस इक्वेशन. हीट बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा बता सकते हो आप लोग प्लीज. यहाँ पर हीट बैलेंस इक्वेशन, टोटल इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट. टोटल इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट. तो बताइए क्या होगा. इनकमिंग हीट मतलब आई से क्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू सी. इनकमिंग हीट, आउटगोइंग हीट. आई होप दिस इज क्लियर. यस और नो. आई होप दिस इज क्लियर. यस और नो. समझ में आ रहा है सबको, इजंट इट. अब मुझे इसके एफिशिएंसी के बारे में लिखना है. द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. Efficiency of heat engine is denoted by efficiency of heat engine. It is denoted by what? It is denoted by the symbol eta, and eta is equal to output upon input. Output upon input. अब आप मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा what is the output here and what is the input here. इस इंजन का एक्चुअल ये इंजन किस लिए तैयार किया जाता है. What is the output desired? What is the output desired? Can you please tell me what is the output desired? Hello. अरे इंजन का काम क्या होता है? To do the work. So which part is the output here? Which part? तो ये है तुम्हारा ultimate output. ये तो वेस्टेज है ना. This is wastage. समझ में आ गया क्या? And this is your input. समझ में आ गया. सो ये जो मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था कि भाई अगर ये है 100 जूल, इसमें 20 जूल अगर वेस्ट होता है तो व्हाट इज द अल्टीमेट आउटपुट 80 जूल. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन. तो आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब इट विल बी W अपॉन QH. दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी. इट इज W अपॉन H. That is the formula for the efficiency. Is this clear to all? समझ में आ गया. तो इस एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसमें उसका एफिशिएंसी कितना आएगा बता सकते हो. आउटपुट इज 80 जूल एंड द इनपुट इज 100 जूल. सो इनटू 100. सो व्हाट इज द एफिशिएंसी देयर. 80% एफिशिएंसी. इज दैट अंडरस्टूड. इज दिस क्लियर टू ऑल. समझ में आ गया. ये वैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था. आई विल जस्ट इरेज दिस. इज दैट ओके. समझ में आ गई बात. लेट अस टेक आवर डिस्कशन फर्दर. हमारा डिस्कशन अभी आगे लेके जाते हैं. तो ये चीजें वहां पे दी है. इक्वेशन 2.4. एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्सॉर्ब्ड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल फॉर्मूला है एंड आसानी से आप इसको याद रख सकते हो. ठीक है. इस हीट इंजन को हम पीवी डायग्राम पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हीट इंजन ऑन द पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम पर इस हीट इंजन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैसा दिखेगा. let's see. This is the heat engine which is represented on the PV diagram. Now यहां पर दिखाया गया है the operating cycle begins at point A. यहां से शुरू होता है. This is the starting point. So it absorbs the heat at constant volume. This is the volume and this is the pressure. So it will absorb the heat at constant volume. This is the first process, absorb heat at constant volume. Is that clear? And इस दौरान no work is done by the gas or on the gas. इसमें कोई work is not done on this gas. Only the heat is absorbed here. This is the first part of the cycle. Then the gas starts expanding. This is from B to C. ये है B to C. And this is the first part that is from A to B.
ये वर्क इज डन बाय द गैस. वर्क डन बाय द गैस मतलब इट इज द वर्क ऑफ expansion. So the gas expands. The gas starts expanding by pushing the piston away and its volume changes. Volume बढ़ेगा, pressure decrease होगा. So here the gas is doing the positive work because it is a work of expansion. Is this clear? This is the second part. Then the third part. यहाँ पर third part दिया है. This is from C to D. This is from C to D. Okay. तो C to D is what is happening there. यहाँ पर अगर ऊपर जाता है तो हीट इज एब्सॉर्ब, तो यहाँ पर C to D द हीट इज रिजेक्टेड. ओके, यहाँ पर द हीट इज एब्सॉर्ब QH and here the heat is rejected, that is QC. Is that understood? Heat is rejected, the excess heat is rejected. excess वाला हीट, तुम्हारे गाड़ी के जो साइलेंसर होता है उसमें जो गैस बाहर आता है वो रिजेक्टेड हीट होता है. समझ में आ गया? गर्म होता है ना वो, तो क्या उसका टेम्परेचर सराउंडिंग या सिंक टेम्परेचर से ज्यादा होता है? सिंक मतलब एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो इट इज एट द हायर टेम्परेचर देन द रिजर्वायर. एटमॉस्फेयर cold reservoir we can say, or sink we can call this as. Is this clear to all? तो उसी तरह से excess amount of heat is given out there, लेकिन वो वेस्टेज है. क्योंकि ऐसा सोचिए, जो तुम्हारे गाड़ी से निकलने वाला धुआं है उसका टेम्परेचर और कम किया जाए और कम किया जाए तो दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड. इज इट नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है. समझ में आ रहा है? आइडियली क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू द सराउंडिंग टेम्परेचर. समझ में आ गई बात? Isn't it? Ideally that should happen so that efficiency ज्यादा मिलेगा. Is this okay? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. So heat is rejected here. This process is again at constant volume. We can see this process is taking place at constant volume. Any doubts about that? This is the third process. And then the fourth process, this is again D to A. D to A. The gas is now compressed. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद दोबारा गैस कॉम्प्रेस किया जाता है. Is this clear to all? सो हियर कंप्रेस किया जाता है मतलब वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा. सो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस. इजंट इट? एंड अगेन वो एट पॉइंट ए पहुंचता है. लेकिन हमारे इंजन में क्या होता है कि यहाँ पर हीट रिजेक्ट होता है मतलब गैस बाहर चला जाता है और इसी दौरान फ्रेश गैस अंदर आता है इंजन के अंदर, फ्रेश स्टॉक ऑफ गैस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? और फिर वो वाला गैस कंप्रेस हो जाता है. ये तुम्हारे इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर ये सब मैनेज किया जाता है. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इसलिए उसको साइकिल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हीट रिजेक्शन के दौरान जो गैस बाहर जाता है उसी जगह पर नया गैस भी वहां पर दाखिल हो जाता है आईसी इंजन के अंदर. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर द हीट इंजन. आपको ये डायग्राम्स याद रखने हैं क्योंकि somebody was asking yesterday, सर थियोरेटिकल क्वेश्चन. हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन ऑन द पीवी डायग्राम. लिख लो ये सब. इज दिस ओके? जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है या अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. आई रिपीट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ऑलराइट, लेट मी प्रोसीड फर्दर. अब यहां पर हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन का काम क्या होता है? व्हाट इज द टास्क ऑफ हीट इंजन? आई कैन नॉट सी एवरी स्टूडेंट. अपन ना थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करोगे प्लीज? हाँ, so what is the task of heat engine? It receives the heat, converts the part of this heat into the work, and excess amount of heat is given out. Is this okay? Excess amount of heat is given out. उसके exactly opposite process होगा रेफ्रिजरेटर का. उसका exactly opposite process होगा रेफ्रिजरेटर का, या उसको हम हीट पंप भी कहते हैं. So this is the schematic diagram of heat pump या रेफ्रिजरेटर. Again, this is exchanging the heat with hot reservoir and cold reservoir. Previous case में heat engine में what was the cold reservoir? What was the cold reservoir in this case? Cold reservoir was the atmosphere. Yes or no? Is it not the atmosphere? यहाँ पर cold reservoir is the atmosphere, isn't it? इसके विपरीत रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें तो what is the sole task of the refrigerator? It is nothing but artificial cooling. रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कूल करता है. सो वो पहले हीट कहां से लेता है?
जो रेफ्रिजरेटर का अंदर का होता है ना, वहां से वो हीट लेता है, इजंट इट? और वो रेफ्रिजरेटर हीट कहाँ फेंकता है? बाहर की तरफ। क्योंकि आपने अगर रेफ्रिजरेटर का पीछे पीछे का साइड होता है, कहीं कई बार वहां पे ग्रिल होता है या वो प्लेन सरफेस होता है, लेकिन वो गर्म होता है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज टेकिंग द हीट फ्रॉम द कोल्ड, कोल्ड रिजर्वायर, यही है हमारा कोल्ड चेंबर। ये है कोल्ड चेंबर, जहां पर कूलिंग इफेक्ट इज डिजायर्ड। रुको ना, लेट मी फिनिश। ये है कोल्ड चेंबर, जिसके अंदर हम आइस वगैरह वो रखते हैं, या तो फिर अपनी क्या बोलते हैं, सब्जियां वगैरह रखते हैं। तो वो जो कंपार्टमेंट है फ्रिज का, वो कोल्ड रिजर्वायर होता है, और कोल्ड रिजर्वायर से ही वो हीट वहां से उठाता है। सो आई विल कॉल दिस एज क्यूसी। ओके, इट टेक्स द हीट, इट लिफ्ट्स द हीट। लेकिन ये काम करने के लिए कंप्रेसर वहां पर होता है ना, कंप्रेसर होता है फ्रिज के अंदर। सो कंप्रेसर इज डूइंग द वर्क। So we have to supply the work here. The work is to be done, and this is done where? In compressor. Is this okay? And with the help of this, it rejects the heat to the hot reservoir. What is hot reservoir here? Hot reservoir is the surrounding here. क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है? से 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं वो कितना होता है? तकरीबन 5 to 7 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजर जहां पर होता है, डीप फ्रीजर, वहां पे तो इट्स इवन लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पर आइस होता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो ये है तुम्हारा स्कीमेटिक डायग्राम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट पंप। व्हाई हीट पंप? पंप क्या करता है? पंप कोई भी चीज, जैसे पानी का पंप, लोअर लेवल से अपर लेवल तक पंप करता है, वो उसके लिए उसको वर्क इज डन। यस और नो? तो इसी तरह से यहां पर हीट वो यहां पर उठाता है, एंड इट इज रिजेक्टिंग हीट। दिस रिजेक्टेड और एक्सचेंज विद द हॉट रिजर्वायर इज कॉल्ड एज QH। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस? इज देयर एनी डिफरेंस इन द वर्किंग? वर्किंग में है डिफरेंस, या दिस इज ऑपरेटिंग इन द रिवर्स वे। हीट हीट इंजन जो था वो यहां से हीट रिसीव कर रहा था। गौर से देखिए यहाँ पे, इट वॉज रिसीविंग द हीट फ्रॉम हियर एंड गिविंग आउट द वर्क। द वर्क इज आउटपुट देयर, एंड इट इज दिस इज द। तो इसके बराबर हर एक चीज यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। QH वो ऊपर की डायरेक्शन में है, W आउट है, लेकिन यहाँ पर इन होगा। इज दिस क्लियर? दैट इज द डिफरेंस इन द हीट पंप और रेफ्रिजरेटर एंड द हीट इंजन। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? स्कीमेटिक डायग्राम समझ में आ गई सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स आर द हीट इंजन्स दैट वर्क ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन they convert mechanical work into heat. What is the input here? Work is the input here. This is the input. And what is the desired output there? Which is the desired output? Desired output कौन सा है? हाँ? Yes, we want to cool it. Cooling effect is desired. So this is the desired output. This is the desired output. Are you understanding what I am saying there? And this is the input. और ये है वेस्टेज। जो फ्रिज का पिछला हिस्सा गर्म होता है वो वेस्टेज है ना, इट्स अ वेस्टेज। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गई? इनपुट किसी भी डिवाइस में, व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द आउटपुट एंड व्हाट इज द वेस्टेज। यहां पर भी हमने लिखा था हीट इंजन में व्हाट वाज द आउटपुट? वर्क वाज द आउटपुट। हीट इंजन इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग द वर्क और एनर्जी। नाउ व्हाट इज द इनपुट? ये है इनपुट, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो हम छोड़ देते हैं, वेस्ट हो जाता है, वो ये है hot gases which are coming out from the silencer of your vehicle. Yes or no? Do you try to use it? No? कहाँ यूज होता है? चटका बैठता है उससे, बराबर है ना? Isn't it? लेकिन इसमें जैसे कि फ्रीज में, फ्रीज के अंदर वो पीछे का हिस्सा उसका फ्रीज का कितना गर्म होता है, यू डोंट बॉदर, इट्स वेस्टेज फॉर यू। यस और नो? हेलो, यहां पर डायग्राम दिया गया है कि बाबा फ्रीज जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो कैसे काम करता है। हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन टू द हॉटर रीजन। ठीक है, कैसे होता है? हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम, देखिए देयर आर 3 लॉज ऑफ फ्लो इन फिजिक्स। देयर आर 3 लॉज। कौन से 3 लॉज है?
मैं आपको बता दूं, द एयर और एनी लिक्विड, या इसको हम फ्लूइड बोलते हैं, दैट फ्लूइड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यस और नो? हीट, सॉरी, ये लिक्विड ऐसे फ्लो होगा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यस और नो? इजंट इट? करंट जो होता है, करंट, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इजंट इट? अपने आप फ्लो होगा ये। एयर विल फ्लो, fluid will flow from higher pressure to lower pressure. The current will always flow from higher potential to lower potential, isn't it? The water or the heat will always flow from, heat will always flow naturally, it will flow from higher temperature to lower temperature. These are the three important laws. समझे क्या? इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, this will flow naturally. लेकिन यहां पर एग्जैक्टली हम उल्टा कर रहे हैं, we are trying to make the heat flow from lower temperature to higher temperature. Do you understand that? वो अपने आप नहीं flow होगा, उसके लिए you have to supply some work, some energy, some work is to be supplied there. Are you understanding that? Isn't it? So that's what they say here, heat cannot flow from region of lower temperature to higher temperature on its own. For this we need to do some work there, isn't it? और इसके लिए we make use of the phase change. अब ये जो फ्रीज होता है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, ओके। इट कैन देयरफॉर पंप द एनर्जी, मतलब यहां पर फ्रीज के अंदर जो एक लिक्विड होता है, हम बोलते हैं ना गैस खत्म हो गया, एसी के अंदर का गैस खत्म हो गया, फ्रीज के अंदर का गैस भर दिया फ्रीज के अंदर, कभी कभी मेंटेनेंस करने वाला खराब हो गया तो वो करते हैं ना वैसे, तो वो जो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है इन केस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट, ओके। द फेज चेंज ऑफ अ फ्लूइड, तो वो फ्लूइड होता है, समटाइम्स इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, समटाइम्स इट इज इन द गैसियस और वेपर फॉर्म, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेंट, ओके। तो उसको यहां पर फेज चेंज के लिए यूज किया जाता है, ओके। नाउ ये जो रेफ्रिजरेशन का साइकिल है, इस पाइपलाइन के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ठीक है। बेसिकली उसके दो साइड्स होते हैं, एक साइड होता है जहां पर ब्लू दिखाया जाता है, उसको हम कहते हैं कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन मतलब यहां पर जो कोल्ड चेंबर होता है वो साइड वाला कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। दिस इज विद इन द फ्रिज, विद इन द कंपार्टमेंट। और दूसरी तरफ हॉट रीजन होता है, हॉट रीजन मतलब आउटसाइड द फ्रिज, उसका जो बैक वाला वॉल होता है ना, इजंट इट, वो हॉट होता है, तो इसको ब्लू रेड कलर से दिखाया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, इट विल एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द थिंग्स, वहां पर जो कोल्ड चेंबर में चीजें रखी जाती है, जो फूड आर्टिकल्स वगैरह हम रखते हैं, उससे वो हीट एब्सॉर्ब करता है और फिर वो हीट बाहर जाके रिजेक्ट कर देता है। अब ये कैसे करता है, तो उसको कंप्रेसर उसकी मदद से वो कर लेता है। हाउ डज इट डू इट? सो इट डज दिस, ये जो रेफ्रिजरेंट हीट एब्सॉर्ब करेगा, वो हीट कैसे एब्सॉर्ब करेगा, तो यहां पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है एंड इट गेट्स, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। सो लिक्विड फॉर्म में होता है एंड इट विल टेक दिस हीट एंड दिस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, इस प्रकार, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। इज दैट अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, तो इस तरह से वो हीट यहां से एब्सॉर्ब कर लेता है, दिस इज क्यूसी। अब बाद में वो वेपर बन गया है, इट हैज बिकम वेपर नाउ, बाद में उसको वेपर से कंप्रेस किया जाता है और कंडेंस भी किया जाता है। कंडेंस करने की वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग कंडेंसन इट विल गिव आउट द हीट, तो यहां पर वो वेपर फॉर्म से कहां कन्वर्ट हो जाता है, अगेन लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड ड्यूरिंग दिस कंडेंसेशन प्रोसेस इट विल गिव अवे द हीट देयर टू द आउटसाइड। इज दिस क्लियर? कैसे होता है ये प्रोसेस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो द रेफ्रिजरेटर इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग, वी कॉल दिस एज आर्टिफिशियल कूलिंग। अब ये देखिए, ये है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का डब्बा, उसके बाहर होता है कंप्रेसर और यहाँ पर एक थ्रॉटल वॉल या एक्सपेंशन वॉल भी होता है, और ये होता है उसके पीछे। पुराने जो वाले फ्रिज रहते थे उसके अंदर वहां पर वो ऐसे ग्रिल टाइप रहता था, जाली रहती थी पुराने वाले फ्रिज में। आजकल नया जो नया मॉडल्स आए हैं उसमें इट्स अ फ्लैट थिंग, लेकिन वहीं पर वो हीट
गिव आउट करता है, आप लोग जाके फील करते हो कि वो पीछे का हिस्सा उसका गर्म होता है। कंपनी हमेशा आपको बता देगी, कंपनी वाला बंदा बताएगा कि यू कीप सम सेफ डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द रियर साइड ऑफ द फ्रिज, सो दैट वहां से हीट वो बाहर से एकदम चिपक के मत रखो, ऐसे बताएंगे वो आपको, इजंट इट, फॉर द इफेक्टिव हीट ट्रांसफर वी से। ठीक है, अब ये जो है दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ब्लू वाला रीजन है वो कोल्ड रीजन है, दूसरा है हॉट रीजन है। उसको मैं और एक चीज बोलूंगा, दिस इज HTHP रीजन एंड दिस इज LTLP रीजन। व्हाट इज HTHP? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रीजन, और LTLP बोले तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर रीजन। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस फंक्शनिंग, हाउ दिस साइकिल फंक्शंस, ये कैसे काम करता है। तो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड द क्लोज ट्यूब विच कैरीज द रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक है कंप्रेसर, फिर है एक्सपेंशन वाल्व एंड दिस इज द क्लोज ट्यूब जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। ठीक है, लेट अस सी हाउ डज इट वर्क। अ फ्लूइड, ये अब इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। सो वो एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में या 1 मार्क के लिए कि द फ्लूइड विच इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इज, इट इज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इट इज, ये मैं भेज रहा हूँ, आप लोग बाद में कर लीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग फॉर दिस थिंग, मैं आपको भेज रहा हूँ, डोंट वेस्ट, मैं भेजने वाला हूँ आपको ये। ठीक है, तो आप बाद में घर पे जब रिवाइज करोगे तब आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। सो इट इज द फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज यूज्ड देयर। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज एक्चुअली। तो सेम डायग्राम मैंने यहां से यहां पे कॉपी किया है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल द 4 स्टेप्स वन बाय वन। लेट अस सी दीस स्टेप्स वन बाय वन। तो पहले जो होता है, द फ्लूइड पासेस थ्रू द नोजल। नोजल मतलब यही एक्सपेंशन वाल्व, इसी को मैं नोजल कहता हूं। I'll call this as nozzle या expansion valve, isn't it? समझे? You are feeling sleepy, वहां पे जाओ। तो नोजल क्या करता है एक्चुअली? एक्सपेंशन वाल्व या नोजल, तुम्हारे जो पाइपलाइन में अगर तुम नोजल लगाओगे तो उसका प्रेशर ऐसे ही हो जाता है, अंदर पहले प्रेशर होता है, सडन देयर इज ड्रॉप इन द प्रेशर, यस और नो? यस और नो? तो यहां पर जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, उसका प्रेशर ज्यादा होता है तो वो रिलीज हो जाता है, यहां पर नोजल जब इधर आ जाता है, isn't it? तो इसके पहले यहां पर दिस इज इन द वेपर स्टेट, ओके, दिस इज, ये जो होता है दिस इज इन द वेपर स्टेट। तो वेपर स्टेट से वो हाई प्रेशर वाला होता है तो वो लो प्रेशर वेपर बन जाता है। सॉरी, एक मिनट, ये वेपर स्टेट नहीं, ये लिक्विड स्टेट होगा, दिस इज द लिक्विड स्टेट। बट हाई प्रेशर वाला लिक्विड है वो लो प्रेशर वाले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, isn't it? तो यहाँ पर नोजल एक्सपेंड्स इनटू लो प्रेशर एरिया, तो यहाँ का हाई प्रेशर कन्वर्टेड इनटू द लो प्रेशर, बट दिस इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेज। अब ये लिक्विड वाला जो है, लिक्विड मतलब फ्लूइड फॉर्म में हम बोल सकते हैं, तो यहां से फिर वो, सो द फ्लूइड टर्न्स इनटू गैस एंड कूल्स डाउन, दिस इज इसेंशियली एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ये जो पहला वाला स्टेप है, इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? एडियाबैटिक मतलब नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, सिर्फ वो एक्सपैंड हो जाता है, नो हीट इन्वॉल्व इन दिस केस। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑलराइट। अब ये एक मिनट, इन्होंने क्या दिया, फ्लूइड टर्न्स इनटू गैस एंड कूल्स डाउन, हाँ, तो यहां पर लिक्विड से वो गैस बन जाता है, सॉरी, फ्लूइड टर्न्स इनटू गैस एंड कूल्स डाउन, नहीं रे, ये लिक्विड ही बचेगा, दिस विल बी लिक्विड ओनली, हाउ कैन इट बी गैस? स्टेप 2, चलिए यहां पर वो लिक्विड ही बन जाता है, the fluid turns into gas and cools down, no it doesn't। यहां पर फिर वो इवेपोरेटर कॉइल से घूमता है ना, व्हाट इसका नाम क्या है? इवेपोरेटर। इवेपोरेटर मतलब वो क्या करेगा? इवेपोरेट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये लिक्विड जो है इट गेट्स इवेपोरेटेड व्हेन दिस इज पासिंग थ्रू दिस गैस, पासिंग थ्रू दिस कूलिंग चेंबर। क्यों वो यहां पर मतलब दिस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस हियर और इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट। समझ में आ गई बात?
इजंट इट? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड लाइक -3 -4 -5 डिग्री सेल्सियस। तो उतना टेम्परेचर में वो क्या करेगा, वहां से हीट ले लेगा एंड इट विल इटसेल्फ गेट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर भी अब लो है और प्रेशर भी लो है। फिर ये लो प्रेशर वाला लिक्विड है वो यहां से बाहर आता है एंड कंप्रेसर, कंप्रेसर का काम क्या है? तो दिस वाज सेकंड स्टेप। यहां पर द हीट is transferred to it and it's a constant pressure, so it is isobaric expansion. Is this clear to you all? यहाँ पर ये isobaric expansion है, ये fluid turns into gas, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि कूलिंग का प्रोसेस जो होता है, कूलिंग कूल्स डाउन, ठीक है, cools down is okay, but it is not converted into gas. The fluid cools down, I can say. The fluid will cool down here. That's correct. The fluid cools down here. Is this clear? ये मिस्टेक है बुक का, हमने उसको करेक्ट कर दिया है। ऑलराइट फिर तो पहला प्रोसेस जो था वो अडायाबैटिक एक्सपेंशन का था और ये दूसरा प्रोसेस है वो आइसोबारिक, इट इज कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद यहां पर इसको कंप्रेस किया जाता है। नाउ दिस इज अगेन अडायाबैटिक, दिस इज अडायाबैटिक, दिस इज आइसोबारिक एंड दिस इज अगेन, वो कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, सो दिस इज अगेन अडायाबैटिक। समझ में आ गई बात? दिस इज अगेन अडायाबैटिक। सो स्टेप 3, the gas is transferred to the compressor which does most of the work in this process. The gas is compressed adiabatically. तो ये गैस compress हो जाता है adiabatically. Is this clear to all? समझ में आ गया? यहाँ पर वो गैस compress हो जाता है adiabatically and step 4 में, so ये अभी भी गैस ही है, this is again gas, ठीक है। स्टेप 4 में दिस इज अगेन हाई प्रेशर वाला गैस होता है। स्टेप 4 यहाँ पर है, यहाँ पे हीट इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर, दिस इज आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो गैस है दैट इज मेड टू पास थ्रू द कॉइल्स, जो बाहर पुराने जमाने का फ्रिज रहता था उसमें पीछे की तरह जो कॉइल्स रहते थे, तो वो क्या करेगा, हॉट गैस जो है इट एक्सचेंजेस हीट विद द सराउंडिंग, तो उसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। सो दिस इज अगेन कूलिंग, इजंट इट? यहाँ पर उसका आइसोबारिक कंप्रेशन हो जाता है। सो दिस इज द स्टेप 4। इज दिस क्लियर? यहाँ पर दिस गैस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, हियर द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फिर ये लिक्विड दोबारा इधर जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन वो हाई प्रेशर होता है, वो लो प्रेशर लिक्विड में हो जाता है एंड दिस वे द साइकिल कंटिन्यूज। एनी डाउट्स अबाउट दिस साइकिल प्लीज टेल मी। चारों के चारों स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं मैंने आपको। इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पर चीजें इंपॉर्टेंट क्या है? अडायाबैटिक, आइसोबारिक, अडायाबैटिक, आइसोबारिक, समझ में आ गया? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट HTHP, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, LTLP, यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कैसे जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस नोजल। और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कैसे जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसर। एज सिंपल एज दैट, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, कीवर्ड जो है वो मैंने वहां पर ऑलरेडी मार्क कर दिए। दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड। एनी डाउट्स अबाउट दिस? दिस इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड दिस इज द रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप का हीट बैलेंस के लिए स्कीमेटिक डायग्राम। इज दैट अंडरस्टूड? नाउ जो ये रहा कोल्ड, यहां से इट टेक्स द हीट, सो दिस इज QC, this is requiring some heat, some work, यहाँ पर some work is done here, some work is done here and this is giving out the heat to the this thing. Is this okay? Same diagram ये बुक में दिया है और ये मैंने ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है। ओके, हाउ नाउ जैसे हीट इंजन का परफॉर्मेंस इज डिनोटेड बाय एफिशिएंसी, लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस है it is denoted by a word, we call this as COP. It is called as coefficient of performance, coefficient of performance. In short, we denote it by COP. The symbol used for this is, कई बार उसको K बोलते हैं, कई बार उसको बीटा बोलते हैं, but ultimately it is the same thing, it is output upon input, output upon input.
अब आप मुझे बताइए कि इसमें आउटपुट क्या होगा और इनपुट क्या होगा। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द आउटपुट रेफ्रिजरेशन में, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। यहां पर मैंने लिखा है, देखिए क्या आउटपुट चाहिए अपने को रेफ्रिजरेटर के अंदर। You want the cooling effect, so cooling effect is the desired output, yes or no? Are you understanding that, isn't it? So we say this is cooling effect is the desired output. तो वो आउटपुट क्या जाएगा, और इनपुट इसके लिए हम व्हाट आर वी इन्वेस्टिंग हियर, कंप्रेसर को जो है बिजली का बिल आता है, उसकी बिजली का जो एमएस इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे कंप्रेसर काम करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, तुला पण झोप आली है, ठीक है। सो व्हाट इज द आउटपुट एंड व्हाट इज द इनपुट हियर, कैन यू प्लीज टेल मी। इन दिस केस आउटपुट इज, व्हाट इज द आउटपुट, हेलो, एक सेकेंड ना, मैं उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई जस्ट गेट दिस डायग्राम हियर। आई टेक इट ओवर। बताइए व्हाट इज द आउटपुट हियर, क्यूसी, एंड व्हाट इज द इनपुट हियर, डब्ल्यू। So this is the formula QC upon W. This is beta or this is K, or it is also called as coefficient of performance. समझ में आ गया? Is this clear to all? समझ में आ गया सबको? Alright. So let me just put this in the box. This is the coefficient of performance COP. QC upon W. This indicates the performance of the refrigerator. It's called as coefficient of performance COP. K कभी कभी बीटा भी बोलते हैं इसको. Larger is the ratio. हाँ, ये रेशो लार्जर होना मतलब क्या है, लार्जर इज द रेशो, बेटर इज द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को बेटर कब बोलोगे आप लोग, जब ज्यादा हीट वो कूलिंग कर रहा है, ज्यादा कूलिंग अच्छे से कर रहा है बाय टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ वर्क, सो इट इज बेटर सीओपी। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया? ऑलराइट, सो डूइंग द मिनिमम वर्क इन द ऑपरेटिंग साइकिल। So that was about the refrigerator. अगर तुम्हारी नींद चली गई है तो बैठ जाओ, it's not a punishment. Okay, I'll proceed further now. आगे बढ़ते हैं। Air conditioner also works on the same principle. Refrigerator is working to achieve the artificial cooling for the limited space. Refrigerator जो होता है वो limited space के लिए artificial cooling करता है, लेकिन air conditioner is doing for the लार्जर स्पेस के लिए करता है, बट द ऑपरेटिंग साइकिल इज सेम, द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम, द वर्किंग ऑफ द एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर एग्जैक्टली सेम। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, सिर्फ एक फर्क ये होता है, फॉर एन एयर कंडीशनर the evaporator coils are inside the room that is to be cooled, and the condenser is outside the room. The air cooled by the evaporator coils inside the room is a circulator. जो ठंडा हवा होता है ना, वो उसके फैन से फेंका जाता है। Is this clear to all? ठीक है? So not much different, I would say. No such difference. Okay. Capacity of the air conditioner is expressed in tons. वो बोलते हैं 2 टन का है, 3 टन का है. It is tons of refrigeration, TR. Before refrigerator and AC was invented, cooling कैसे करते थे? Cooling was done with the blocks of ice. Ice blocks यूज करते थे पुराने जमाने में, ठीक है? वो अकबर बादशाह वगैरह उस टाइम पे, अगर आप लोग, हाँ, तो वहां पे वो लोग ठंडा पानी with the help of ice they used to achieve that. Okay, when cooling machines were invented, the capacity was expressed in terms of equivalent amount of ice melted in a day or 24 hours. The same is used, tons of refrigeration. कितना टन आइस मेल्ट होगा? Is this clear to all? So it is done in terms of ton of refrigeration, TR. Okay, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हीट पंप का मतलब क्या होता है? हीट इंजन और हीट पंप में फर्क क्या है? हीट पंप इज यूज्ड फॉर पंपिंग द हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर.
So it is more or less refrigerator only. Is that clear? Heat pump is a device which works similar to the refrigerator. It is used for pumping the heat from lower temperature to higher temperature at the expense of the work input. Is this okay? Just like what the water pump does. It lifts the water from lower level to higher level at the expense of the energy input. Is that okay? Any doubts about this? Okay. चलिए, now tell me what is the first law of thermodynamics. Now here we go for the second law of thermodynamics. लेकिन before going for the second law of thermodynamics, we have to understand what are the limitations of the first law. The first law of thermodynamics says Q is equal to delta U plus W. Q is equal to delta U plus W. Are you understanding what I'm saying there? ये हमने फर्स्ट लॉ देखा है. तो इन दिस केस ये क्या बोलते हैं, द हीट में ऑन इट्स ओन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हाँ, ये तो अपने को पता है, खुद ब खुद चलती है. तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? क्या it can also on its own flow from object at lower temperature to the one at higher temperature? Practically this cannot be done ना, प्रैक्टिकली. लेकिन फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है. अपने को पता है व्हाट इज द नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना क्या है? द हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, इजंट इट? तो ये जब ऐसा फ्लो होता है, देन इट इज डूइंग. तो अभी अभी हमने क्या देखा कि भाई दिस इज द हॉट रिजर्वायर, ये रहा कोल्ड रिजर्वायर, और ये रहा हीट इंजन. तो हीट इंजन क्या करेगा, यहाँ से हीट ले लेगा, आई कॉल दिस एज QH. सम पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क, एंड बाकी यहाँ पर उसने दे दिया. ठीक है. तो क्या ऐसे ही पॉसिबल है कि भाई इसको हीट अपने आप फ्लो हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम हीट को रिवर्स करते हैं, पूरा का पूरा आई वुड से पूरा का पूरा हीट ऊपर. तो उसके लिए अपने को वर्क डन, बट इसके बारे में फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं बोल रहा है. सो फर्स्ट लॉ इज नॉट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट इज द रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल. तो इसके लिए सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी. ओके. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अब यहां पे अगर डेल्टा यू जीरो हो जाता है, तो वॉट एवर हीट इज सप्लाइड, इट विल टोटली गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? मतलब अगर हीट इंजन की बात करें तो समझो कि ये है हायर रिजर्वायर और हायर टेम्परेचर रिजर्वायर. दिस इज गिविंग द हीट टू द हीट इंजन, and it has to exchange with the cold reservoir, cold temperature reservoir or low temperature reservoir, and this is the work done. तो अभी एक चीज मुझे आप बताइए कि यहां पर अगर हीट रिजेक्ट ही नहीं किया तो पूरा का पूरा हीट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां पर 100 जूल हीट दिया तो पूरा का पूरा विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्क, and this will give me the efficiency of heat engine as 100%, because this is the output and this is the input, and output upon input is 1, so 100%. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता. 100% कोई भी चीज, यहाँ पे कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता. उसका एफिशिएंसी 99% हो सकता है, 100% नहीं. अगर वैसा एफिशिएंसी होता तो इट विल नॉट गिव आउट एनी हीट टू द सराउंडिंग्स ना. बराबर है क्या? मतलब यहां से जो गैसेस तुम्हारे बाहर आएंगे उसका टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू दिस टेम्परेचर. यस और नो? लेकिन तुम्हारे गाड़ी में अभी कैसा होता, अभी कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता. दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ओके. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी कुड कन्वर्ट ऑल. फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर ये चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क, बट दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज गिवन बाय सेकंड लॉ. This is the major drawback or limitation of the first law. According to first law, we could convert 100% of the heat available into the work. Similarly, all work could be converted into heat. We know that practically this is not possible. समझ में आ गई बात? बर्फ रखा है, बर्फ यहाँ पर it is giving out the heat to the surroundings.
एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब हम बोलते हैं कि नहीं, यही प्रोसेस मुझे रिवर्स होना चाहिए यहां पर, ऐसे ही पॉसिबल है? नहीं ना, isn't it? So it's not possible. So practically every process is not reversible, rather reversible process is a hypothetical concept. आगे हम जाके देखने वाले हैं. So this leads to the foundation of the second law of thermodynamics. यहाँ पर second law of thermodynamics आता है. According to the second law of thermodynamics, कि भाई जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ना, जो मैंने वहां पर, दिस फॉर्म्स द बेसिस और फाउंडेशन ऑफ द सेकेंड लॉ, कि यहां से हीट लिया और यहां पर वर्क में कन्वर्ट हो गया. So it is not practicable, it is not possible to have an engine which will exchange heat only with the one reservoir and will totally convert it into the work. ऐसा possible नहीं है, ऐसा possible नहीं है. Is that okay? तो this forms, ये देखिए ऐसा होता है QH, W and QC. So most of this heat is converted into the work and little part of it is given out. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा हीट कन्वर्ट हो गया वर्क में और यहाँ पर कुछ भी उसने, दिस इज नॉट पॉसिबल. इज दैट क्लियर? दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पहला स्टेटमेंट. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज प्रेजेंट इन टू स्टेटमेंट्स. ये जो स्टेटमेंट है इसे कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड एज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. It is also called as engine law because it is talking about the heat engine. It is also called as engine statement. According to this law, it is impossible to extract an amount of heat QH from the hot reservoir and use it all to do the work. Some amount of heat QC must be exhausted to the cold reservoir. This prohibits the possibility of perfect heat engine. अगर वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है तो परफेक्ट हीट इंजन होगा, आइडियल हीट इंजन होगा, विथ 100% एफिशिएंसी होगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? हेलो, समझ में आ रहा है? सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और द हीट इंजन स्टेटमेंट और इंजन लॉ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब ये इंजन लॉ बोलते हैं. इसके पहले हमने दो चीजें देखी है, एक हीट इंजन देखा है और दूसरा रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप देखा है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ गया? इजंट इट? तो उसी तरह से सेकंड लॉ के लिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का भी एक स्टेटमेंट ले लिया. देखिए ये जो मैंने दिया था, दिस इज व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन रियलिटी. ये है रियलिटी में और ये जो दिया है वो नॉट पॉसिबल है. दिस इज नॉट पॉसिबल. समझ में आ गया ना? दिस इज द सेकंड लॉ. सेकंड लॉ में ऐसा पॉसिबल नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. यस और नो? दिस इज अबाउट द हीट इंजन. इसी तरह से यहां पर रेफ्रिजरेटर में व्हाट इज रियलिटी वो यहां पर दिखाया गया है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. समझ में आ गया? तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? रेफ्रिजरेशन के लिए वो यहां से हीट उठाता है और वहां पर ही कुछ वर्क इनपुट इज टू बी सप्लाइड सो दैट ये टोटल हीट इज गिवन आउट टू द हॉट रिजर्वायर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द रेफ्रिजरेटर और हीट पंप इन रियलिटी. यस और नो? पॉसिबल क्या नहीं है कि भाई आप उसको वर्क इनपुट बिल्कुल भी नहीं दोगे और पूरा का पूरा हीट यहां से उठा के वो ऊपर भेज देगा. नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हेन यू वांट टू मेक इट पॉसिबल यू हैव टू सप्लाई द पानी ग्राउंड फ्लोर से अपने आप ऊपर जाएगा क्या रे? उसके लिए मोटर का इनपुट लगेगा. Isn't it? उसी तरीके से हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को जाने के लिए यू हैव टू सप्लाई सम वर्क. यस और नो? दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड एज क्लॉसियस स्टेटमेंट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, क्लॉसियस स्टेटमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर लॉ और रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट. It is not possible for the heat to flow from cold body to the warm body without any work having been done to accomplish this flow. ये स्टेटमेंट्स है वो आपको एज इट इज उसको लर्न करने पड़ेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ये आपको पूछा सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो उसके दोनों स्टेटमेंट फिर दे दो आप, डायग्राम के साथ दे दो आप. इज दिस ओके? अंडरस्टूड? दिस काइंड ऑफ थियोरी क्वेश्चंस आर पॉसिबल देयर. क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने शायद प्रिंट आउट उसके निकाल दिए हैं सैटरडे के दिन, तो बाय नाउ इट मस्ट बी रेडी विथ योर प्रिंट आउट भी बना दिए और उसका स्पाइरल बाइंडिंग भी बता दिया. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके
चलिए, वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर नेट एनर्जी फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हो नहीं सकता, यू हैव टू सप्लाई द वर्क फॉर दैट। एनी डाउट्स अबाउट दैट? आज हमने दो चीजें देखी है, एक है हीट इंजन और दूसरा है रेफ्रिजरेटर, isn't it? And then we have seen the second law of thermodynamics। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल कब होता है जी? रिवर्सिबल कब होता है? कोई भी प्रोसेस जो होता है, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में लास्ट टाइम बात करी थी, अगर आपको याद होगा तो। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस वेरी स्लोली एंड इट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम यहां पे बात करें, कोई भी प्रोसेस, सपोज यहां से कोई प्रोसेस रिवर्सिबल यहां से यहां जा रहा है, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इट इज टेकिंग प्लेस इन इनफाइनाइट सिमिलर नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस है, इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर आप देखते हो, इफ यू लुक एट दिस माइक्रोस्कोपिकली, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, यहां से जब वो इधर जाता है तो एक्चुअली यहां से उधर जाता है एंड इट इज कैपेबल ऑफ रिटर्निंग टू इट्स, मतलब ऐसे भी जाता है वो, दोबारा वो उसी रास्ते वापस आ सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस मतलब इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली स्लो। और इसमें क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब इट विल ऑलवेज बी कीपिंग in thermal equilibrium with the surroundings. So these are some of the traits, some of the properties of the reversible process। ये क्वेश्चन कई बार पूछे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर में रिवर्सिबल के बारे में दिया है और ब्लू कलर में इरिवर्सिबल के बारे में दिया है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऐसे भी जा सकता है फिर उल्टा भी जा सकता है, इसलिए वो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, इट इज टेकिंग प्लेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर ऑफ स्टेप्स and it is extremely slow process. The system is in thermodynamic equilibrium with its surroundings or environment throughout the change। क्योंकि वो आइसोथर्मल होता है तो इस वजह से उसका it will always keep in thermal equilibrium or thermodynamic equilibrium with the surroundings। Is this okay? Irreversible process के क्या traits है? Irreversible process on the contrary is a unidirectional process। देखो वो वहां पे distinguish between the reversible और irreversible process दे सकते हैं। तो these are the three factors। पहला है it is bidirectional, this is unidirectional। ठीक है, infinite similar number of small steps, ऐसा यहाँ पे कोई नहीं, वो एक फटाक से हो जाता है। ओके, दूसरा the system is in thermodynamic equilibrium with the surroundings। यहाँ पर the irreversible process is not in thermal equilibrium with the surroundings, system is not in thermal equilibrium। is this clear to you all? समझ में आ गई बात? is this okay? ठीक है, thermodynamic equilibrium is basically consist of three equilibriums: mechanical equilibrium, chemical equilibrium and thermal equilibrium। if you remember, have we talked about this? अगर आप टेक्स्ट बुक देखते हो तो उसके अंदर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर तीन चीजें दी गई थी। यू गो टू पेज नंबर 89, पेज नंबर not 89, it's on पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर तीनों इक्विलिब्रियम होते हैं: मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। यस और नो? हैव वी टॉक्ड अबाउट दिस? इजंट इट? अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर थर्मल बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली उनको क्या बोलना चाहिए? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट दिस शुड बी? थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्योंकि थर्मोडायनामिक के अंदर तीनों आते हैं: मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने नोट इसलिए आपको बताया बिकॉज दे कैन आस्क यू द थियरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिवर्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। अब हीट इंजन मैक्सिमम एफिशिएंट कब होता है? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि हीट इंजन जो होता है तो हाँ, तो दिस मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला हीट इंजन वाज प्रपोज्ड बाय, फॉरवर्डेड बाय
put forth by, suggested by a scientist, an engineer, Carnot. Carnot नाम का था. So Carnot proposed a hypothetical ideal engine in 1824 which has maximum efficiency. ठीक है. This is called as Carnot engine. इसको Carnot engine भी कहते हैं and it operates on the Carnot cycle. तो यहां पर Carnot cycle दिया हुआ है. ठीक है. It basically consists of two processes. यहां पर A to B is isothermal expansion, जहां पर हीट ऐड किया जाता है. उसके बाद होता है B to C adiabatic expansion. This is adiabatic expansion, जहां पर वर्क इज डन. दिस इज द एक्सपेंशन वाला ना, बराबर है क्या? दिस इज एक्सपेंशन. उसके बाद यहां पर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है. मतलब ये और ये दोनों प्रोसेसेस, दिस इज टेकिंग प्लेस एट टेम्परेचर TH and isothermal compression is taking place at temperature TC. Is that understood? So isothermal, adiabatic, isothermal, adiabatic. That's it. The first one is isothermal expansion at temperature TH, जहां पर heat is supplied, heat is absorbed. Then adiabatic expansion. यहाँ पे adiabatic expansion है, मतलब it is doing the positive work of expansion. फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दिस इज अ प्रिंट मिस्टेक. यहाँ पर क्या बोलना चाहिए? यहाँ पर क्या बोलना चाहिए? एडियाबैटिक कंप्रेशन. देखो तुम लोग भी तैयार हो गए. क्या बात. इज दैट अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. सो हीट एक्सचेंज स्टेप्स A to B एंड C to D, these are reversible and the heat exchange must be isothermal. यहाँ पर ये दोनों भी रिवर्सिबल है. इनफैक्ट Carnot साइकिल के सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक. इज दिस क्लियर टू ऑल? यहाँ पर भी ये रिवर्सिबल है बट दीज आर द टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस. इज दिस क्लियर? Carnot साइकिल का स्पेशलिटी ये है, नंबर 1, 100 ये उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 processes, alternate, isothermal and adiabatic, and every process is reversible. Is this clear? Every process is reversible. समझ में आ गई बात? So for maximum efficiency the source temperature TH should be as high as possible and the sink temperature should be as low as possible. देखते हैं इस Carnot साइकिल की या Carnot इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी. let us go for writing down the efficiency. तो इसका एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला जो है, अभी तक मैंने सारे फॉर्मूला आपको बता दिए, डिराइव करके दिखा दिए. नाउ यू कैन ट्रस्ट मी. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को लिखना पड़ेगा. इंजन है ये, तो इंजन का जो वर्क आउटपुट होगा दैट इज W. दिस इज आउटपुट एंड इनपुट इज QH. इज दिस ओके? इट इज QH. तो Carnot साइकिल भी इसी पर, या Carnot इंजन भी इसी के ऊपर काम करेगा. किसके ऊपर काम करेगा? दिस इज QH which is operating at TH. Okay, this is giving out QC and this is the higher temperature reservoir, this is low temperature reservoir and this is at temperature TC. और यहाँ पे it is doing some work. Is this okay? So this is the output. और इसके लिए हम स्पेंड क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? दिस इज द इनपुट. इज दिस ओके? सो आउटपुट अपॉन इनपुट, यस और नो? नाउ बट आई कैन से दैट W, यहां पर हीट बैलेंस में क्या लिख सकता हूं? आई नो दैट QH is equal to W plus QC. So what is W is equal to QH minus QC and let me substitute here. तो ये क्या मिल जाएगा? QH minus QC upon QH. Isn't it? ये डेरिवेशन है. हाँ, वेरी सिंपल. आ गया आंसर. Now let us separate this. So this will become 1 minus QC upon QH. 1 minus QC upon QH. And we know that कि भाई QC क्या होगा? QC is directly proportional to, ये heat rejected is directly proportional to the temperature. So QC upon QH
will be directly equal to, you have to assume this thing, will be directly equal to Tc upon Th, and therefore what is this going to become? Therefore eta is equal to 1 minus Tc upon Th. Is this okay? So these are the formulae for efficiency of Carnot engine. These are the formulae for efficiency of Carnot engine. Is this clear to all? So let me call this as, this is efficiency of Carnot engine, eta C या simply eta. Is that clear to all? 1 minus QAC upon QH या 1 minus TC upon TH, या फिर ये वाला भी फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. Is this okay? Any doubts? This is for any engine and this is specifically for Carnot engine. Is that clear? Any doubts about that? समझ में आ गया? अच्छा, टेक्स्ट बुक में उन्होंने उसको ना मॉड्यूलस फॉर्म में दिया है फॉर नो रीजन. Well, I don't want to put it in the modulus form. While solving the numericals from NCERT at fingertips, we really don't need this modulus thing. We'll simply follow the some sign conventions. Okay? ठीक है? चलिए. So, what are the points to be remembered about the Carnot engine? As I told you, it's a hypothetical concept. Every process is either isothermal or adiabatic, and the system must maintain thermodynamic equilibrium throughout. Thermodynamic equilibrium मतलब every process is reversible here. समझ में आ गई बात? And then the efficiency of Carnot engine can never be 100% unless, हाँ इसका efficiency के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. Let's talk about the efficiency. If I talk about the efficiency here, when is the efficiency 100? Efficiency मतलब eta is equal to 1, या उसको 100% कब बोल सकते हैं? 100% तब बोलेंगे जब Tc upon Th is equal to 0. Tc upon Th is equal to 0, या तो फिर Qc upon QH is equal to 0. That is when is this possible? When Tc is equal to Th into 0 is 0 और Qc is equal to 0. मतलब हीट रिजेक्टेड जो है वो 0 होना चाहिए. हीट रिजेक्टेड 0 होने का मतलब क्या हो गया? दोबारा जाइए वहीं पे. हीट रिजेक्टेड अगर 0 हो गया तो अगेन वी गो फॉर द सेम. अगर ये हीट रिजेक्टेड 0 हो जाता है, प्लीज चेक हियर, अगर ये हीट रिजेक्टेड 0 हो जाता है तो अगेन इट इज गोइंग इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न ना. QC अगर 0 हो जाता है, दिस इज द हीट रिजेक्टेड विच इज 0, दैट मीन्स इट इज गोइंग इन दिस पैटर्न. बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसा हो नहीं सकता मतलब QC कभी 0 नहीं हो सकता. QC कभी 0 हो नहीं सकता मतलब कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इसका मतलब है QC कभी भी 0 नहीं हो सकता. यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, isn't it? That means the efficiency can never be 100%. That's what is mentioned in this point here. Is this clear to all? Hello? This is not possible. This is not possible by second law. उसका second form of second law of thermodynamics. Is this clear to all? Hello? Any doubts so far? Great. So now हमने Carnot क्या क्या देखा हमने अभी तक? पहले हमने देखा हीट इंजन, देन हीट पंप या उसको रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, isn't it? Then I am applying this for the Carnot हीट इंजन. Carnot का हीट इंजन अभी देखा हमने, बराबर है क्या? That is called as Carnot engine. तो उसी तरह से अब हम Carnot का रेफ्रिजरेटर देखेंगे, Carnot रेफ्रिजरेटर. Is this okay? Now we'll see the Carnot refrigerator. Let's have a look at this now. Check. We know that the refrigerator is nothing but heat engines operated in the reverse direction. हाँ पता है अपने को, heat engine को opposite direction में operate कीजिए. Because each step of Carnot cycle is reversible, the entire Carnot cycle is reversible, isn't it? If we operate the Carnot engine in the reverse direction, we get Carnot refrigerator, isn't it? So उसका उसी engine को हम देखते हैं, ये जो देखा ना, same. This is for Carnot engine. This is for Carnot engine. सिर्फ इसका डायरेक्शन आप अपोजिट कर दो तो क्या बन जाता है वो? अभी क्या देखा?
ये A to B, B to C, C to D और D to E. What is this? This is heat engine. अब हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर एग्जैक्टली ऑपरेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो व्हाट विल बी द Carnot रेफ्रिजरेटर? You draw the same diagram. Draw the same diagram with changed direction. If you draw the same diagram with the changed direction, यहां पर अगर मैं सेम डायग्राम ड्रॉ कर लूं, ठीक है, अब मुझे सिर्फ चेंज क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन ऐसा दिखाना पड़ेगा. समझे? I'll have to show you the direction like this. I'll have to show the direction like this. I'll have to show the direction like this. समझ में आ गई बात? Isn't it? तो ये बन जाएगा Carnot रेफ्रिजरेटर. Is this okay? Any doubts about that? Okay? हाँ. हाँ, अब यहां पर ये आइसोथर्मल क्या होगा? कंप्रेशन. और ये क्या होगा? एक्सपेंशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. और ये क्या होगा? कंप्रेशन. एंड दिस विल बिकम एक्सपेंशन. ये एक्सपेंशन सही है ना? करेक्ट. इज दिस ओके? सो दैट हैज बिकम Carnot रेफ्रिजरेटर नाउ. एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझ में आ गया? ऑलराइट. तो अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ Carnot रेफ्रिजरेटर आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस. When the temperature difference is very small, the coefficient of performance. इसका COP भी उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे. इसका COP अब अगर हम इसके COP की बात करें तो what will be the coefficient of performance of Carnot refrigerator? Carnot refrigerator का coefficient of performance COP, which is denoted by K or which is denoted by beta, is equal to क्या होगा बताइए? Output upon input. तो if I'll show the same thing here, let us say कि Carnot रेफ्रिजरेटर जो है, हाँ, इसका COP मुझे चाहिए. तो उसके लिए मैं एज्यूम करूंगा कि भाई दिस इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH. दिस इज द रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट टेम्परेचर TC. ओके. नाउ इट इज एक्सट्रैक्टिंग हीट यहां से ऐसे. दिस इज QC, द वर्क इज W, and this is the QH. Is this okay? All right. What is the output and what is the input here? This is the desired output. This is the output, and this is the input. सही है? So this is output upon input. क्या होगा बताइए यहाँ पे? This is given by, that is equal to, output क्या है? QC upon W. सही है? But I know that, I know from the heat balance equation, W plus QC is equal to QH, और W is equal to QH minus QC. समझ में आ गया? So let me just substitute here. This is going to become what? QC के जगह पर QC ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा QH minus QC. Is this okay? So that is, now I'll divide both the numerator and denominator by QH. QH से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए यहाँ पे? What is this going to become? Yes, please tell me. This will give me COP or K or beta is equal to QC upon QH divided by 1 minus QC upon QH. समझे क्या? But as we know that QC upon QH for Carnot cycle, it is equal to TC upon TH. समझे क्या? तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा K के लिए. This is one formula. And the same formula I can write. Same formula उसको मैं इसको in terms of temperature भी लिख सकता हूँ. So this is given by K is equal to TC. Hold on, यहाँ पर मैं इसको substitute करूँगा. So I'll just substitute these things here.
I'll just substitute these things. So what is K is equal to beta is equal to QC upon QH is actually TC upon TH. समझे? Divided by 1 minus TC upon TH. अब दोबारा LCM खेल लो. Thank you for silence. Take the LCM दोबारा. So what is K is equal to beta is equal to क्या बनेगा? ये LCM लेने के बाद this will become TC upon TH minus TC. So यही चीज मैंने इधर in terms of temperature लिख दी. Is this clear to all? Is this clear to all? So this is the coefficient of performance. समझे? Now what is the relation? What relation which connects the coefficient of performance? मैं इसको K ले लेता हूं. And the efficiency. This is for the Carnot refrigerator. And this is for the Carnot heat engine. दोनों में क्या फर्क है या क्या कनेक्शन है दोनों का? There is one MCQ that is going to come. उस टाइम पे मैं इसका रिलेशन आपको बता दूंगा. ठीक है? Is this clear? क्योंकि देखिए what is K is equal to? K is equal to TC upon TH minus TC. And what is efficiency is equal to? Efficiency जो हमने लिखा था वो क्या था? It was TH. ये था efficiency. ये था 1 minus TC upon TH. Is it? 1 minus TC upon TH. This is 1 minus TC upon TH. और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन देगा? TC upon TH divided by 1 minus TC upon TH. समझे क्या? Isn't it? तो what is this denominator? Eta. Is it eta? तो यहां पर can I say that this is nothing but and ये अगर इधर आ गया तो what is TC upon TH? 1 minus eta. समझे क्या? तो what is K is equal to 1 minus eta upon eta. Is this okay? This is not in the textbook. Textbook में नहीं है. But this is the formula which connects them. Is that okay? This is clear to you all? एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा एनसीईआरटी के अंदर जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. लेट्स प्रोसीड. सो दैट वाज अबाउट द Carnot refrigerator. COP of Carnot refrigerator also depends upon the temperature difference. बराबर है? The coefficient of performance is very small when the temperature difference is large. Coefficient of performance, देखिए temperature difference अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, coefficient of performance is given by this. तो अगर ये बहुत छोटा होगा, if this is very small, check here please. If this temperature difference is very small, तो कॉप जो है वो बड़ा होगा ना, उसका वैल्यू ज्यादा होगा. Isn't it? और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है. बराबर है ना? The more is the value of coefficient of performance, better it is. And to achieve that, this temperature difference should be very small. Should be very small. That is given here, isn't it? That means small quantity of heat will be removed when the large amount of यहाँ पर कॉप का ज्यादा होने का मतलब है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिमूव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉल वर्क. बराबर है क्या? कंफ्यूज? अच्छा मुझे ये बताइए, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर वैल्यू ऑफ कॉप, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होना चाहिए. वो ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट. व्हाट इज द आउटपुट? हीट रिमूव्ड. एंड व्हाट इज द इनपुट? वर्क डन. समझे? तो अगर ये कम होगा तो कॉप ज्यादा होगा, और कॉप ज्यादा होने का मतलब है कि मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिमूव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. समझ में आ गई बात? इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कैनॉट साइकिल. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कैनॉट साइकिल. The Carnot engine is the most efficient heat engine. Also, all Carnot engines operating between the same. हाँ, ये बहुत important चीज है. कोई भी Carnot engine हो, which is operating between the two same temperatures. Okay. Also, all the Carnot engines operating between the same two temperatures.
will have the same efficiency, क्योंकि Carnot efficiency is totally dependent upon the temperature. So दो Carnot engine अगर same temperature के बीच में काम कर रहे हैं तो दोनों का efficiency same होगा, isn't it? Second thing, we have two very important statements. Carnot engine is the most efficient engine and efficiency of Carnot engine is independent of the working substance. Efficiency किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सिर्फ temperatures के ऊपर. It is independent of the working substance. Is that clear? The next important thing, we can also show that a Carnot refrigerator has great coefficient of performance among all the refrigerators working between the same two temperatures. तो बेसिकली Carnot engine is the best option, maximum efficiency वाला option है, चाहे वो engine हो या refrigerator. Any doubts about that? And we go for the last thing in this chapter. The last thing in this chapter, which is called a Stirling cycle. We go for the last thing in this chapter, that is the Stirling cycle. Stirling cycle का speciality क्या है? दिया है मैंने वहां पे मार्क करके. The thing is, the working substance used in Stirling cycle क्या क्या है? Air, helium, hydrogen, nitrogen, etc. And it is based on this cycle. Now this is a PV diagram. आप लोग क्या बताओगे इस साइकिल के बारे में? Without going for the explanation, अगर आप लोगों को बोला जाए कि from the diagram comment, what comments you can draw? यहां पर compression हो रहा है, sorry expansion हो रहा है, A to B. What kind of process is this? ये कौन सा process है? This is adiabatic process. Yes or no? Adiabatic process. And it is taking place at a constant temperature. देखिए यहाँ का temperature TH है. हाँ तो ये sorry adiabatic नहीं है. I'll say this is isothermal process. Temperature अगर constant है तो this is isothermal process. समझ में आ गया? A to B is isothermal expansion. Yes or no? What do you say about B to C? यहाँ पे heat is added. यहाँ पे heat is added. यहाँ पे heat is given out. Heat is given out at constant volume. Is it constant volume B to C? ये vertical straight line है ना? Vertical straight line मतलब it's a constant volume process. So it is isochoric. Is it isochoric process? Isochoric process in which the heat is given out. फिर यहाँ पर ये कौन सा process है? Is it isothermal again? Isothermal process जिसमें heat is given out and it's isothermal compression. क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, compression. This is isothermal expansion. Are you understanding that? And again, what is the fourth process? D2A. क्या हो रहा है यहाँ पर? Again, heat is added here. Heat is added by which process? It's a vertical line perpendicular to V-axis. Isochoric, absolutely correct. This is isochoric again. Is this okay? So this is isochoric heat addition. Isothermal expansion, again heat addition there in that, and this is isochoric expansion. तो ये डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. There are two vertical lines which indicates that process DA and BC isochoric, and AB and CD these are the isothermal expansions and compressions. ठीक है? ये है this is the speciality of Stirling cycle. और एक speciality है, what is the working substance? Air, helium, hydrogen, nitrogen. This is the another speciality. Is that okay? All the processes of Stirling cycle are reversible processes. ये और एक speciality हो गया. Every process is reversible. और when the work is done on the gas, it works as refrigerator. देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या किया जाता है और हीट इंजन में क्या किया जाता है. हीट इंजन में डिजायर्ड इफेक्ट अचीव करने के लिए गैस का बॉम्ब स्फोट होता है ना सिलेंडर के अंदर, डुक 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 डुक. तुम्हारी गाड़ी का जो फायरिंग होता है उसके अंदर क्या है? एवरी साइकिल द गैस इज एक्सप्लोडेड एंड इट इज एक्सपांडेड. यस और नो? सो गैस इज डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. द वर्क इज डन बाय द गैस. यस और नो? टू अचीव द रिक्वायर्ड इफेक्ट. तुम्हारे फ्रिज में क्या होता है? कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करता है. सो द वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस. The work is done on the working substance. Compression is the work is negative, na? Work is done on the system, on the working substance. So it is a refrigeration. Did you get that?
तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए, when the work is done on the gas, when the work is done on the gas, on the gas मतलब it's a compression process, बराबर है, isn't it? It works as refrigerator. This is reverse working of Stirling cycle. The reverse Stirling cycle is extensively used. Reverse Stirling cycle, इसको reverse किया तो जो आएगा, it is used in the cryogenics. Cryogenics क्या होता है, anybody knows? Cryogenics सैटेलाइट वगैरह जो होता है उसके अंदर जो एयर कंडीशनिंग इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ क्रायोजेनिक्स. इज दिस ओके? ठीक है. तो दो जो उसके जो इंजिन्स होते हैं सैटेलाइट के, दैट इज कॉल्ड एज क्रायोजेनिक्स. इज दैट क्लियर? तो वहां पर ये चीज होती है टू प्रोड्यूस extremely low temperatures or to liquefy the air or gas mentioned above. Is that okay? ठीक है. Okay. The ideal Stirling cycle, द आइडियल स्टर्लिंग साइकिल हैज, यहाँ पर अब प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है. द आइडियल स्टर्लिंग साइकिल हैज टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस ए बी एंड सी डी. दीज आर द टू आइसोथर्मल ए बी एंड सी डी. एंड टू आइसोबारिक दिया है. आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं, वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलना चाहिए? आइसोकोरिक प्रोसेसेस फ्रॉम बी टू सी एंड डी टू ए. इज दिस ओके? प्लीज मेक दिस करेक्शन इन द टेक्स्ट बुक. ऑलराइट. तो यहां पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोकोरिक प्रोसेस बीसी, फिर उसके बाद है आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड अगेन उन्होंने आइसोबोरिक बोला है, लेकिन मुझे वहां पर आइसोकोरिक हीट एब्सॉर्प्शन दिए. दैट्स व्हाट द साइकिल इज ऑल अबाउट. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? द थियोरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ओवर. इज दैट ओके? हेलो? Okay, I'll stop here for physics. Okay.